جی جی شکریہ، بہت شکریہ. کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے آج؟ موضوع یہ ہے کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو پیٹتا ہے اچھا تو کیا اسلام کے اندر اس کے لیے کوئی سزا مقرر ہے؟ ہے نا، کیوں نہیں ہے؟ کیوں چلیے قرآن پیٹتے؟ اور پہلے حدیث یہ پیش بتاؤ، کریں. کس نے کہا کہ پیٹتے تو اس کے لیے سزا نہیں ہے؟ یا آپ نے کدھر سے یہ موضوع لیا ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کیا، آپ نے ابھی ایک جواب دیا. پہلے اچھے سے سن لیجئے سچا مسلم صاحب. جی میں نے آپ سے کہا کہ ہاں ایک شوہر اگر وہ اپنی بیوی کو پیٹے، ہاں پٹے سے مارے یا کسی اور چیز ہاں سے مارے، اس کو نیلا پیلا کر دے، ہرا کر دے، ہاں. کیا اسلام میں ایسے شوہر کو سزا بتائی گئی ہے ایسے شوہر کے لیے؟ اسلام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہے ہی غلط بات ہے. اسلام جو ہے نا اس کو کیوں سزا نہیں دے گا؟ ابھی آپ کا جو ہے نا، آپ اپنی بیوی کو خواہ مخواہ مارنے لگے تو سزا تو ہوگی. آپ کو کسی بھی ملک کا ہاں، کہاں قانون ہے وہ آپ کو سزا؟ وہ سزا دے گا. ہاں؟ کہاں ہے سزا؟ کہاں ہے سزا؟ کدھر مطلب کہاں ہے سزا؟ ابھی کسی کا دماغ خراب ہو وہ اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کرے گا. اچھا چلو، میں ایسا دماغ خراب صحابہ کا ہوا تھا اور وہ اپنی بیویوں کو پیٹتے تھے، بتاؤں میں ابھی؟ کس وجہ سے؟ ایک منٹ ہاں رکو، کس وجہ سے؟ ایک منٹ ساحل دیکھو ایک سیکنڈ یار. بیفور یو یہ لو. برنگ دیٹ حدیث، ایک سیکنڈ مجھے پتا اس اوکے. حدیث میں جلیبی کیا ہے. یار بھائی مجھے قرآن کی آیت پڑھ کے بتائیں کہ جہاں پہ لکھا ہوا مار سکتے ہو. یہ کون ہے؟ یہ کون بول رہے ہیں بیچ میں؟ یار میں ہوں آدم. آدم. ہاں جی، اب جلدی سے بتاتے ہیں کہ قرآن آپ کی اس آیت کے اندر، قرآن کی اس آیت کے اندر مارنے کے لیے سبب کیا دیا ہوا ہے؟ کدھر ہے بتاؤ. لو میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں میری جان. لے آؤ لے آؤ لے آؤ. یہ لو یہ لو. مجھے پتہ ہے لیکن لے آؤ. آپ کہہ رہے ہاں نا مجھے وہ پتا، ٹھیک ہے، تمہیں پتا لے ہے، آؤ. مجھے پتا، میں تم سے پہلے بات کی بھی ہے. یہ لو. ہاں لے آؤ ہاں لے آؤ. یہ بکرا آپ کے پاس آیت ہوگی، مجھے ذرا عربی میں دیکھ کے بتاؤ کہ یہاں پہ مارنے کے لیے جواز کیا ہے. تم نے کہا بغیر کسی جواز کے مارنے کے اوپر سزا ہے. ترجمہ لے آؤ نا اس کا. میں موبائل پہ ہوں، مجھے جو ہے نا چھوٹا ہی نظر آ رہا ہے. ترجمہ یار لے آؤ، پڑھ کے سناؤ. اور اس کا یہاں پہ ترجمہ لکھا لے ہوا آؤ ہے، نا. سن لو ہاں سن لو. یہاں پہ لکھا ہوا ہے تخافون. تخافون میں کا کہتا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں ترجمہ اس کا لے آؤ نا، پڑھ کے چلو سناؤ نا. ترجمہ لے کے آتے ہیں. تو جی بھائیو آپ سب وہ نے مجھے دیکھ لیا، پتہ ہے آپ آپ سب تلاوت نے کر دیکھ لیا. سکتے ہو، وہ ایک مجھے سیکنڈ ایک پتہ سیکنڈ ہے. یار، صبر یار، میری ایک بات سیکنڈ. سنو، وہ مجھے پتہ ہے کہ آپ تلاوت کر سکتے ہو. آپ ایکس اوکے مسلم ہے، مجھے تھینک یو. پتہ اچھا ذرا ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا. ہے. تمام لوگ جو ہاں اس وقت لائیو اسٹریم میں دیکھ رہے ہیں 3,500 لوگ، بھائی لوگوں آپ نے دیکھ لیا اس بھائی نے کیا ترجمہ لے کے آؤ. ٹھیک ہے، ہاں ہاں. آپ سب نے دیکھ لیا اس بھائی نے کیا کہا ہے، ترجمہ لے کے آؤ. مرد عورتوں پر حاکم ہے. ہاں ٹھیک ہے، حاکم ہے. بسبب اسی فضیلت کے. ٹھیک ہے، حاکم کا حاکم کیوں مطلب ہے؟ یہ ہے کہ حاکم کیوں ہے؟ وہ سربراہ ہے نا گھر کے. کیوں 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 سربراہ ہے؟ کیا مطلب کیونکہ آپ کا ملک کا سربراہ کیوں ہوتے ہیں بھائی؟ نہیں نہیں سربراہ تو سر، بنانا پڑتے ہیں. بھائی ایک او سیکنڈ بھائی آیت کو پڑھیں. ایک آیت منٹ. کو پڑھیں. آیت کو پڑھیں، بتائے جی گی کیوں سربراہ ہے. کیا مطلب اس میں کیا لگے کیوں سربراہ ہے؟ پڑھیں پڑھیں، بتائے گی. ہاں مرد، پڑھیں تھوڑا سا اس کو موٹا کرے، اس کی لکھائی ذرا زیادہ اور کرے. موٹا کرو، مرد عورتوں پر حاکم ہے بسبب اور اس موٹا کر دیں. سہلانا بسبب اس پڑے گا آپ کو. ایک منٹ. بسبب اس فضیلت کے جو اللہ. او یار اس کو بیچ میں جو ہے نا اپنے جو ہے نا زنانیوں کی طرح نہ ہنسے. کوئی یہ بات نہیں، کوئی کون بات ہے نہیں. جو بالکل. اوپر اچھا ہاں اثر نا، ہے، اچھا اثر ہے، کوئی بات نہیں. اس کے ہنسنے کی اجازت ہے نہیں اس کو. ہنسنے کا مقام ہی نہیں، اس کے لیے رونے کا مقام ہے. رونے اس کوئی کا بات نہیں، رونے بعد کا میں مقام اچھا یہ ہنس آگے رہے. بڑھو بعد میں یار. رلائیں گے، بیک سٹیج میں رلاؤں گا اسے، ٹینشن نہ لیں. ماروں گا نہیں اس تو کو ٹھوکر آپ کے. ادھر بات کرنے آئے جو ہے نا، اچھا وہ یار، تو مجھے اچھا چھوڑ پتہ یار ہے. اس بات کو یار. بس سبب ہاں اس فضیلت کے، فضیلت کے اللہ نے بتائیے کیوں حاکم ہے. ہاں. کیوں حاکم ہے پڑھ دیجئے پلیز. بس سبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے، اور ہم، بسبب اس کے کہ جو وہ کو جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال، پس وہ جو نیک بیویاں اچھا ہیں. بس پس کے بعد جائیں گے، پاس بعد میں جائیں گے. تو پہلی بات یہ ہے، مرد حاکم کیوں ہے اس آیت کے مطابق؟ بھائی وہ سربراہ ہے نا، وہ خرچ کرتے ہیں، خرچ کی کیوں ذمہ ہے؟ داری اس کے کیونکہ وہ ذمہ ہے خرچ نا. کرتا ہے، کیونکہ وہ ہاں خرچ خرچ کرتا ہے. کرتے ہیں. اوکے ہاں نا، ویٹ کریں یہاں پہ، ویٹ یہاں پہ ہاں رک جائیے. اس کا ہاں مطلب ہے ہاں اگر کوئی مرد آج کی دنیا میں ایسی عورت سے شادی کرتا ہے جو ہاں خرچ کرتی ہے، جو ہاں کماتی ہے، اور مرد جو ہاں. ہے وہ شوگر ڈیڈی ہے. شوگر ڈیڈی سمجھتے ہیں اب سمجھتا ہوں کیا سمجھتا ہوں. ہوتا ہے شوگر ڈیڈی؟ اور بس میں سمجھ گئی ہوں آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں. اوکے، اگر مرد شوگر ڈیڈی ہے تو پھر ہاں. یہ جو حکم ہے، جو اس کا ہاں. حاکم ہونا ہے، یہ تو پھر عورت کو بن جانا چاہیے. عورت کی یہ ذمہ داری ہی نہیں ہے کہ وہ گھر چلائے گی، اپنے پیسہ کمائے irrelevant گی. اور میری بات سنو، نہیں ایریولنٹ نہیں ہے. irrelevant ہے نا. ایریولنٹ اللہ اور نے نہیں نا. دیکھیں بھائی، اور میرے بھائی، اللہ نے فضیلت کیوں دی ہے پہلے یہ بتا دیں اس قرآن کی آیت میں. اور میں فضیلت اسی لیے دی ہے کہ گھر کا سربراہ وہ ہے نہیں جو نہیں، گھر گھر کے کا سربراہ ایک کیوں ہے؟
अरे भाई सरबराह कमाल क्यों करते है? हो, अल्लाह ताला ने बनाया है ना, अल्लाह ताला ने नहीं, बनाया है, क्योंकि वो खर्च करता है अपने माल से। खर्च करते हैं, लेकिन अल्लाह ने बनाया, खर्च करेगा, उसकी जिम्मेवारी अल्लाह अरे ताला ने दी है। एक सेकंड रुके, मेरे मेरी बात बात सुनो, सुने। आराम से मैं सुनो, 15 सेकंड बोलूंगा, आपने बीच में बोलना नहीं है, कान खोल के सुनना है, 15 सेकंड के लिए कान खोल के सुनना है। फिर मुझे भी बोलने दोगे? हाँ, आप भी फिर नहीं मैं 15 बोलेंगे सेकंड आपको भी दूंगा, पूरे 15 सेकंड आपको दूंगा। जी। 15 सेकंड हो और उससे कान सुना है। मर्द हाँ। औरत का हाकिम है बसबब, किस सबब के? जो अल्लाह ने बाज को बाज पे दिया, और क्या सबब दिया है? और बसबब इसके कि वो खर्च करते हैं अपने माल में से। अब 15 सेकंड के अंदर मैंने आपको बता दिया, ये अल्लाह कह रहा है हाँ। खर्च करने वाले की वजह से वो हाकिम है। अब आप बताएं क्यों नहीं है बिल्कुल, खर्च करने की आप वजह से? सही कह रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला ने उसको सरबना बनाया, खर्च की जिम्मेवारी उसकी है, जो घर के बेहतरीन। जितने भी मामलात है। एक मिनट सुनो, अभी आप लोग, मैंने कहा था अभी आप नहीं अरे बोलेंगे। 15 सेकंड हो गए। नहीं ना, अच्छा चलो फिर आप, हाँ, ठीक है 15 हो गए तो ये फिर तो मैं नहीं पूरा हो गया ना बोलता हूँ। बात, ये बात पूरी होगी। हाँ, अब आगे जी, चलें, अब आगे चलें, हाँ, अब हाँ, आगे बढ़ें, जी, आगे बढ़ें। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। असल में मोबाइल पे बहुत कम नजर मैं आते पढ़ हैं। दूं अगर आपको बुरा ना आप माने? पढ़े, आप पढ़े, मैं सुन रहा हूँ, पढ़े। सुन ले, अब ये मेरे 15 सेकंड में काउंट तो नहीं होंगे? आप 20 सेकंड में पढ़ लो, मुझे चले। कोई जल्दी नहीं है। तो नेक बीवियां हैं वो उतात शुआर होती हैं, यानी वो हुक्म जो मानने वाली नेक होती है, जो जो नेक नेक होती है, जो नेक होती है जो, वो एक मिनट, एक मिनट, एक बात करने दो। नेक जी, बीवी, नेक समझते हो नेक क्या होते हैं? नेक होती हैं, जो नेक होती हैं। हाँ, जो आप लोग की तरह नहीं, जो आप हमारी लोग की तो होती हम है, जो बीवी पाल ही नहीं आजाद, सकते भाई, क्या डंगर बुना और कर रहे हैं बीवी आप? नहीं, आप लोग की बीवियों की बात कर रहा हूँ, अरे आप लोग की भाई हम बहनों की बीवी बात नहीं कर रहा बन हूँ। सकते यार। आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप बीवी बनेंगे। आपकी सिस्टर्स, आपकी जो घरेलू औरतें होती है, एक्स मुस्लिमों की या नॉन मुस्लिमों की, उसकी बात कर रहा हूँ। अब उनकी वो आगे नेक नहीं बोल, होती आगे आपके बोल। मुताबिक? अब वो मैं आपको बताता हूँ क्यों नेक नहीं होती, चल आगे बताऊंगा। नहीं, पहले पहले ये कंफर्म कर ले, क्योंकि हो सकता है कि एक एक्स मिनट, मुस्लिम की बहन, एक्स मुस्लिम चल की चल, सुन ले, मैं सुन ले, सुन ले, सुन ले। हो सकता है सुन रहा कि हूँ जी। एक एक्स मुस्लिम की बहन जो है वो मुसलमान ही हो, उसने अभी तक इस्लाम ही ना छोड़ा हो, फिर तो वो नेक नहीं रही, जो क्योंकि एक्स मुस्लिम हो गया उसका भाई, तो वो भी नहीं, बद हो गई। अब नहीं नहीं नहीं, तेरी जो है ना बहन है ना, वो मुसलमान हो ही नहीं सकती, वो होगी मेरी तेरी बहन तो है तरह। ही नहीं ना, प्रॉब्लम ये है। अच्छा, यही तो प्रॉब्लम, मेरी अच्छा, बहन ही नहीं है। पर्सनली लेकिन फिर आप नहीं मेरा जो समझ क्वेश्चन सच्चा सकते, है, मुस्लिम चलो साहब टॉपिक पे बात करो, सच्चा मुस्लिम साहब जी, टॉपिक पे मैं बात तो करो। टॉपिक पे कर रहा हूँ, बताओ, आगे अच्छा बोलो टॉपिक पे आ जाते हैं वापस। अच्छा, अब जी। ये हो गया कि वो नेक बीवियां अताअत शुआर है, राइट? जी, वो गैब में हिफाजत भी करती हैं अपने आप को, नेक बीवियां, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन अल्लाह अब एक और बात बताने लगा, अल्लाह कह रहा है अगर तुम्हें अपनी खवातीन में से किसी से सरकशी का डर हो, अंदेशा हो, हाँ, डर हो, हाँ, सरकशी का डर है, अभी आपको उसने सरकशी की नहीं है, आपके सामने अताअत डर शुआरी नहीं है, छोड़ी नहीं अंदेशा है, लिखे, अंदेशा अंदेशा है, लिखे। डर। अंदेशा अच्छा डर एक ही चलो, चीज होती है, दो लफ्ज है, चलो एक ही सिनोनिम्स है। समझो, चलो एक ही हाँ, समझो, ठीक है। यानी कि अभी उसने सरकशी की नहीं है, हाँ, करेक्ट? उनको नसीहत करो, अभी उसने सरकशी की नहीं है, राइट? ठीक है, ठीक है। अभी शायद वो थोड़ी सी आपको फील हो रहा है कि उसने नाक मुंह बनाया है, अच्छा, अभी उसने नाक मुंह बनाया, राइट? समझ रहा हूँ, बस बस बोलो आगे, बस तो इनको नसीहत करो, और नसीहत करो। और हाँ, और क्या करो? हाँ, इनके बिस्तरों में उनको तनाव छोड़ दो, सेक्स नहीं करना इसके साथ, तनहा छोड़ दो, ठीक है, और इनको मारो। और फिर मारो, ठीक है, फिर नहीं है, और मारो, और इनको ठीक है, मारो, फिर कहाँ है? ठीक है, नसीहत करो, आगे आगे फिर लिखे नसीहत हुए करो, ना। सुन लो, नसीहत हाँ, हाँ, करो, हाँ। चपेड़ मार के मुंह पे चपेड़ मारो, और साथ में रात को सेक्स ना करना। मुंह पे चपेट तो नहीं लेके इसमें, खैर भाई अद्रुब हुन्ना है ना, चपेड़ मारो, इनको मारो, चलो डंडे से मार लो, डंडे से मार मारो लो, लेके ना, हाँ हाँ आप मारो, डंडे से, हाँ जूती के मारो लेके, साथ, ठीक है, डंडे के साथ या हाथ के साथ, चलो, टेल मी, चलो जिस तरह भी हो। हाँ, जिस तरह भी हो। अब मुझे हाँ, बताएं, एक बीवी ने आपसे हाँ, बदतमीजी भी नहीं की अभी तक, आपको सरकशी का अंदेशा है, डर है, आप उसके साथ बात भी करना छोड़ेंगे, उसको बिस्तर पे भी नहीं जाएंगे, और उसको मारेंगे भी, ये कौन अच्छा, सी इज्जत है औरत की? और यार ये जो है ना, आप जो है ना पता नहीं किधर से तर्जुमे के लेके आ जाते हो, इसका सारा खुलासा मैं लेके आ आपको जाते बताता हो हूँ, अगर हैं? आप सुनना चाहते हैं। एक कुरान मिनट, है। मेरी बात सुनो, पहले खुद ही मेरी कुरान बात में सुन, फट गया, फट गया। सुनना तो एक सही। मिनट, एक आप मिनट, जो है ना सच्चा मस्खरा मुस्लिम बन साहब जाते सुनो ना, हैं, ये जो आप सच्चा जोकरों सच्चा वाला मुस्लिम काम साहब, करते हैं ना, ये ठीक नहीं है सच्चा ना। मुस्लिम आप जो साहब, करना बने, एक आप मिनट, मेरे आप साथ इल्जाम गुफ्तगू ना करें, लगाए ना, मैं इल्जाम नहीं सच्चा लगा रहा मुस्लिम हूँ, साहब, गुफ्तगू करें हम मेरे आपके साथ, साथ, जो करना बने, सुनो ना, आप इधर एक जोकर नहीं सुनो ना, बने हुए जी। सच्चा मुस्लिम साहब, थोड़ा जी, देखिए ब्रेक भी लगाया करो,
تو آپ تمیز کے دائرے میں بات کریں. ابھی جس طرح یہ جو ہے نا کھی کرتا ہے انسانوں کی طرح بات کریں نا یہ میرے ساتھ. تو آپ بھی کھی کرو نا, اس میں کیا پرابلم ہے؟ آپ بھی کھی کرو. اس میں پرابلم ہے, اس میں پرابلم ہے. اگر آپ اتنے اسلام کو سمجھنے کے چکر میں بیٹھے ہوئے نا, جو کہ نہیں ہے, مجھے 100% یقین ہے کہ نہیں ہے. آپ کا مقصد میں اچھی طرح جانتا ہوں, آپ کا مقصد میں جانتا ہوں, پھر بھی میرا دل کرتا ہے کہ آ کے آپ لوگوں کو کچھ سناؤں. میں جانتا ہوں نا. او میرے بھائی تیرے بات اور یار غیب کو چھوڑو نا, تو مجھے نظر آ رہا ہے. نیتوں کا بھید جانتے ہو؟ ہاں تیری نیت کا جانتا ہوں. صرف اللہ جانتا ہے. اللہ بڑا کہ تو, میں تیری نیت کا جانتا ہوں. اللہ بڑا کہ تو, اللہ کہتا ہے نیتوں کا بھید صرف وہ جانتا ہے. تو آپ مانتے ہیں کہ اللہ بڑے؟ آپ مانتے ہیں, آپ مانتے ہیں, اور تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں. بکواس وہاں پہ نہ کر. میں جانتا ہوں. آپ بھی بکواس دیکھو کہہ رہے, یہ دیکھو مجھے کہہ رہے بکواس کر رہے ہو. یہ اس کی اخلاقیات ہے. ارے تھوڑا صبر کرو یار, ایک منٹ بات کرنے دو. میں میوٹ کر رہا ہوں آپ کو, تھوڑا صبر کرو. ٹاپک پہ آؤ. آپ نے یہ کہا کہ آپ لوگ کہاں سے لاتے ہو. ہم کہیں سے نہیں لائے, ہم جو قرآن میں لکھا ہے وہ آپ کے سامنے لے کے آئے. ابھی یہ پرسنل اٹیک, وکٹم کارڈ, یہ سب کھیلنا بند کرو. اصل جو مدعا ہے, آپ کے سامنے آیت پیش کی گئی جس کے حساب سے آپ اپنی بیوی کو پیٹ سکتے ہو. پیٹنے کا لکھا ہے, اب چاہے وہ آپ یعنی پٹے سے مارو, ہاتھ سے مارو یا لکڑی سے مارو, پیٹنے کی بات کی گئی ہے. اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ میں نے ٹرانسلیشن پہ جانے سے پہلے میں نے کنفرمیشن سے لی تھی 3 دفعہ. عربی پڑھ لو یار, لفظ بہ لفظ ترجمہ کر لو. انہوں نے کہا نہیں ٹرانسلیشن کھولو. ڈاکٹر اسرار احمد کی ٹرانسلیشن ہے, یہ سب دیکھ رہے ہیں. ہاں, اور اس کے بعد انہوں نے مجھ پہ الزام تھوڑایا کہ میں نے غلط, میں تو پڑھ رہا بھی ان سے رہا تھا, رائٹ. تو یہ الزام تراشی, بیک سٹیبنگ, بھائی کم آن ٹاک آن دا سبجیکٹ. ہاں, یہ سب مت کرو سچا مسلم صاحب. میں آپ کو موقع دے رہا ہوں, جو اعتراض کیا گیا ہے اس پہ جواب دو آپ پلیز. آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے. میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے. اوکے انمیوٹ کرو. لیکن آپ لوگ جو ہے نا بات کو سنا کرو, تمیز کے دائرے میں سنا کرو. جس طرح یہ کہتے ہیں نا اس طرح نہیں. ابھی میری سن. ایک تو یہ نا آپ کر رہا ہوں نہیں, آپ مجھے بات کرنے دو پلیز, بات کرنے دو. آپ لوگ کی سب سے بیماری بات ہی نہیں کرنے دیتے. آپ اصل میں کر رہا ہوں لیکن آپ بیچ میں نہیں بولو گے. آپ نہیں بولو گے. شروع کرو. اچھا میں شروع کر رہا ہوں, ابھی بولنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, وہ سب کچھ جانتے ہیں, ہمارا یقین ہے اور آپ لوگ کا نہیں ہے. آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ قرآن میں یہ لکھے فلان میں. میری بات دیتے یار ابھی نہیں دے رہے نا, یہ نہیں دے رہے, کہاں جاتے یہ بات ہی نہیں کرنے دے رہے, تو میں کیا بات کروں. ارے میں دے رہا ہوں نا یار, کیوں رو رہے ہو؟ اس کا منہ بند کر لو, اس کا منہ بند کر لو. اوکے آپ بولتے جاؤ, 1 منٹ دے رہا ہوں, جو بولنا ہے بولو. آپ مجھے 1-2 منٹ دے دو. دے دیا, اللہ بہت بڑا ہے, آگے بولو. اچھا ٹھیک ہے. ابھی اس میں غلط کون سی بات ہے جس پہ آپ لوگ کو اعتراض ہے؟ جب آپ کی بیوی ہے وہ غلط کام کرے گی, اس کا اندیشہ ہے کہ وہ غلط کام کرے, اس کو نصیحت کرو. پہلے نصیحت کرو, یہ نہیں کہ مارو, نصیحت کرو. نصیحت کا مطلب یہ کہ وہ راہ راست پہ آ جائے گی, ٹھیک ہے. اگر اس پر بھی نہیں آتی ہے تو ان کے بستر علیحدہ کر دو. ان سے جو ہے نا مطلب ناراضگی کرو کہ بھائی اس کے ساتھ جو ہے نا جو آپ کہہ رہے وہی بات کر لو, ٹھیک ہے. اگر وہ اس پر بھی نہیں کی تو مارو کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کو جان سے مارو, یہ مطلب نہیں. 1 منٹ سنو نا, بیچ میں نہ بولو. پہلی بات ہی جھوٹ ہے. تمہیں کس نے کہا یہاں پہ 1 2 3 ہے؟ دوبارہ آیت پڑھو, ہائی لائٹڈ ہے, پڑھو ذرا کیا لکھا ہوا ہے, پڑھو یار. میں ترجمے کو دیکھ کے ہی پڑھ رہا ہوں نا. ہاں ذرا دوبارہ پڑھو نا, اس طرح دیکھتے ہیں پہلے بعد میں اور سب سے آخر میں, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ دوبارہ پڑھو. ہاں یہ لکھا ہوا ہے, میں بتاتا ہوں, لکھا ہوا ہے. اس کا منہ بند کرو. جب تک اس منہ پھٹ بندے کا منہ نہیں بند کرو گے بات نہیں ہو سکے گی. سچا مسلم صاحب, پرسنل اٹیک نہیں. آپ نے کہا کہ لکھا ہوا ہے, میں پڑھ رہا ہوں, آپ بتائیے کدھر لکھا ہوا ہے. یہ آپ, مجھے معلوم ہے کہ ابھی آپ بھاگنا چاہتے ہیں, تو آپ ابھی یہ چاہ رہے ہیں کہ میں کچھ ایڈم کو بولوں, وہ گالی دے اور میرے کو نکال دے, یہ لوگ مسئلہ ہی ختم ہو جائے. ایسے نہیں کرو نا یار. اگر علمی گفتگو کرنا ہے تو ہاں بولو, نہیں تو ایسے ہی بول کے چلے جاؤ. میں نہیں کر سکتا, میرے پاس جواب نہیں ہے. اب میں پڑھ رہا ہوں, آپ نے نمبر وائز جو آپ نے کہا ہے کہ یہ سیکوینس میں چلنا ہے, ادھر کہاں ہے وہ آپ کو بتانا ہے, کہاں لکھا ہوا ہے. دیکھیے, سرکشی کا اندیشہ ہو پس ان کو نصیحت کرو اور ان کو ان کے بستر میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو مارو, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ سیکوینس کا بتایا گیا, یہاں پہ سیکوینس بتانے کے لیے ایسا ہونا چاہیے تھا کہ
इनको पहले नसीहत करो, फिर अगर ना माने तो इनके बिस्तर अलग करो, तन्हा छोड़ दो, अगर फिर भी ना माने फिर इनको मारो, ऐसा होना चाहिए था। इतना सिंपल सी बात है। यहाँ पे वैसा नहीं लिखा है, यहाँ पे और लिखा है, ये करना है और ये करना है और ये करना है, ठीक है। आप कोई साहिल बीमार सर, पड़ते हो, हाँ जी एंजल जी, एक बात आपका बोलना चाह इस्तकबाल रहे है। एक बात बोलना चाह रहे जी जी, थैंक यू। एक बात इनसे पूछना चाह रहे थे, अभी ये जस्ट बोलकर निकले थे, ठीक है, शायद आप लोग ध्यान नहीं दिए इनकी बातों पे, कि एक्स मुस्लिम और गैर मुस्लिम जो है औरतें, वो नेक नहीं होती है। हाँ, किस हिसाब से नेक नहीं होती, जरा इनका जवाब मुझे चाहिए, अभी वो इनसे बताएंगे बात बोले, करनी है। हाँ वो बताएंगे बोले, हाँ, वो बताइए आप बताएंगे सर। बोले, उनसे पूछ लेंगे। टॉपिक पे हाँ, बात करेंगे वहां पे। टॉपिक, हाँ एंजल जी, वो हम पूछेंगे इनसे। ये पहले भागे तो नहीं ना। जी जी अच्छा, इतनी बात तो साफ हो गई है। जैसे मिसाल के तौर पे आप जो है डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको बोलता है आपको इंजेक्शन लेना है और एंटीबायोटिक खाना है और पेन किलर खाना है। अगर ऐसा बोले डॉक्टर, इसका मतलब है कि आपको इंजेक्शन भी लेना है, एंटीबायोटिक भी खाना है और पेन किलर भी खाना है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा बोले कि पहले आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा, अगर वो काम ना करे फिर आप एंटीबायोटिक लोगे, अगर एंटीबायोटिक भी काम ना करे फिर आप पेन किलर लोगे, अगर पेन किलर भी काम ना करे फिर आपको एंटीबायोटिक खाना है। अगर ऐसा है तो सीक्वेंस आ गया। और का लफ्ज आया मतलब आपको तीनों करना है। यहाँ पे और का लफ्ज आया है तो यहाँ पे सीक्वेंस की बात नहीं हो रही है। जो तर्जुमा है, सच्चा मुस्लिम साहब आपको अपना आर्गुमेंट रखना है। आई होप कि मैंने क्लियर किया हो। ओके, अभी बात करूं? जी, हेलो, आवाज आ रही है ना? आ रही है, करिए। हाँ ठीक ठीक है। आप कह रहे हैं कि इसमें सब लिखे कि सारे इकट्ठा ठीक है, क्यूआरी कर लो ना, उसका बिस्तर भी कर लो। चलो मैं आपकी बात मानता हूँ, इस तरह ही लिखा हुए। अभी मुझे पहले तो इस तर्जुमे पे जो है ना वो नहीं, अरबी तो मुझे खैर नहीं आती, लेकिन आप लोग अपने मतलब की बात इस पे आखिर पे क्या लिखे, और फिर अगर वो तुम्हारी इताअत करे तो उनके खिलाफ खामखा की ज्यादती की राह तलाश मत करो। आप इससे क्या मतलब लेते हैं? इसका मतलब ये कि जुल्म ना करो, इसका मतलब ये है कि जुल्म मत करो, इसका मतलब है कि जुल्म मत करो। मैं बताता हूँ मतलब, आपकी बात जी, सवाल रुक किया, जाओ आप थोड़ा। जवाब लेना। इसका मतलब है ये तीनों काम करने के बाद मजीद उन्हें नहीं करना अगर वो माफी मांग ले। फॉर एग्जाम्पल, नहीं, एक्सक्यूज मी, लेट मी मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ, सवाल मैं किया, एग्री मुझे नहीं आंसर कर दे रहा दो। हूँ। तुमने सवाल किया, आंसर दे दो, ठीक है। अब आंसर सुन लो ये ना है भाई, बीच कि में ये क्यों टोक रहे हो? तीनों काम तुमने कर लिए हैं। अब अगर उसने माफी मांग ली है तुमसे, ठीक है, उसे माफ कर दो, मजीद नहीं उसे शर्त तंग करना, माफी की है, तलाक नहीं देनी। शर्त माफी की है, शर्त हाँ जी, माफी की है एडम, ये पॉइंट हाँ, आपको शर्त बोलना माफी की पड़ेगा। है, शर्त माफी हाँ। की है, और हाँ। साहिल, और उससे दूसरी बात, बाज आ जाए। हाँ, और दूसरी बात, यहाँ पे सरकशी का अंदेशा है। अभी उसने सामने अंदेशा है। खड़े होके कहा नहीं चल दफा, मैं तेरी बात सुनती नहीं। अंदेशा हो रहा है तुम्हें सरकशी का भी, और तुम इन 3 हदों तक जा सकते हो, और दरमियान में अलिफ वाव रे और है। अच्छा, मैं इसकी एक मिसाल दे देता हूँ, अंदेशा कैसे हो सकता है। मैं मिसाल दे देता हूँ इनको, जैसा मैंने अभी दवा की मिसाल दी और इनको समझ में आ गया, फिर ये बात पलट दी है कि मुझे इस तर्जुमे में भरोसा नहीं है, ठीक है, हालांकि इनको अरबी आती भी नहीं। तो मैं एक मिसाल देता हूं कि आप जो अंदेशा कुरान कह रहा है वो कैसे हो सकता है एक आदमी को अंदेशा कि उसकी बीवी जो है वो हो सकता है कुछ गलत काम करे। मिसाल के तौर पे बीवी ने एक यानी कुछ सामान मंगाया है, ठीक है, डिलीवरी वाला बंदा आता है लेके और बोलता है कि भाई मैं अभी आपकी लिफ्ट बंद हो चुकी है तो मैं ऊपर नहीं चढ़ के आ सकता हूँ, आप एक काम करो कि आप नीचे आके मुझसे सामान ले लो, ठीक है। अब ये जो इसकी वाइफ है इनकी, ये भाई साहब की, नीचे जाती है सामान लेने के लिए, और ये हजरत जो है वो दूर से कहीं देख लेते कि ये कोई नामहरम से ये बात कर रही है। डिलीवरी ली उसने, इन्होंने नहीं देखा, ठीक है, इन्होंने ये देखा कि उनकी वाइफ जो है वो किसी नामहरम से बात कर रही है और इनको लगा मेरी वाइफ मेरे को धोखा दे रही है। ये अंदेशा हुआ इनको, घर पे जाके इन्होंने पीटा, बिस्तर अलग पहले समझाया, बिस्तर अलग किया, पीट भी दिया। बाद में उनकी वाइफ बोलती है मुझे माफ कर दो, मेरा वो नहीं था, ये प्रॉब्लम था, मैं ऐसी नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगी अगर कर भी रही हूं। अब इस पे अल्लाह कह रहा है कि इसको जो है मजीद परेशान नहीं करो, उसको जुल्म नहीं करो। यही बात है, ऐसी बात है ना एडम, अंदेशा ऐसी हो सकता है। अंदेशा मैंने चीजों का हो सकता है। आपने एक एग्जांपल दे दी है, ठीक है, कोई हाँ, बात नहीं, एग्जाम्पल दे दिया, ओके चलो, It's इनको just an अभी मैं example. अभी मौका देता हूँ। जी, मौका दे दो। ये आपने अपनी जी। तरफ से एक्स मुस्लिम अपनी तरफ से कहानी गढ़ ली आपने,
अपने जो आपके दिल में आते हैं ना, आप वही कहानी बना लेते हैं। क्या अंदेशा हो तो एक मिनट मैं बताता हूँ। ये पहले तो आप लोग एक्स मुस्लिम पे मुझे कोई भी भरोसा नहीं है कि वो तर्जुमा आपने और एक मिनट ना मुझे रखा करो ना यार, और मुझे आप लोग की हकीकत, मैं आप लोग की हकीकत जानता हूँ ना। मैं आप लोग आप नहीं जानते, आप अल्लाह भी नहीं जानते। टॉपिक पे एग्जाम्पल है, आप होल्ड करें, मैंने आपको बताई, लेकिन ये तो मुझे बताना पड़ता है ना कि आप लोग की एग्जाम्पल जो है ना आपने गलत दे दिए ना, ये क्लियर बता रहे, इसके अंदर एग्जाम्पल की जरूरत ही नहीं है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि किसी के साथ ज्यादती ना करो, अगर उसमें ये चीज है तो उसको ये करके ना इस तरीके। ओ यार एग्जाम्पल की जरूरत ही नहीं है, आप इतने बच्चे हैं। अच्छा बीवी क्या करे तो आप उसको नसीहत करोगे, उसको बिस्तर पे तनहा छोड़ोगे और उसको मारोगे, क्या करे? बीवी गलत काम करे, आप एक्स मुस्लिमों वाला काम करे जो आप लोग। अच्छा इसकी एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह आप लोग की औरत है, इसकी औरत है ना, जिस तरह ये जो कोई औरत बोल रही थी ना, इसी की मैं देता हूँ। अभी ये मुकम्मल आजाद है, इसके जिधर मर्जी है जिधर मुंह काला करे, आप लोग कहते हो बहुत अच्छी काम कर रही है क्योंकि इस मुस्लिम में बर्तन नहीं है, बर्तन नहीं है। जरा जुबान संभाल कर बात कीजिए सर, ऐसे मुंह काला करे, ऐसे तो आपके भी घर की बहू बेटियां भी मुंह काला कर रही होगी। ये क्या बदतमीजी है बात करने की, औरत से मुंह काला करे, ये क्या लफ्ज है? आप अच्छे से भी बात कर सकते हैं ना। अरे सच्चा मुस्लिम, आपके घर की बीवियां बुर्का पहन के निकलती हैं, बाहर जाके दुआ के वापस आ जाती है बुर्का पहन के, आपको पता भी नहीं लगता। ये क्या मतलब है बताइए? अगर आपकी बेटी के बारे में इस तरह से हम बोले कि आपकी बेटी नकाब लगाकर यो जाती है होटल में और वहां से आकर के हनीमून मना करके घर आकर नकाब लगा के आ जाती है, तो आपको लगता है कि वो मेरी पाक साफ है? और अगर हम नकाब ना लगाए और हम अगर सामने से आकर के बात कर रहे हैं तो फिर आपको लग रहा है मुंह काला कर रहे हैं। अच्छा अभी मेरी सुन, अभी थोड़ा सा खामोशी कर ले। हमारा इस्लाम तो कहते हैं ना कि ये गलत है, अगर मेरी माँ बहन करती है तो वो गलत कर रही है, आप लोग से उसको गलत ही नहीं समझ रहे हो। ओके, गलत कर रही है, गलत करेगी, गलत करेगी। आपने कभी देखा जा के उनके पीछे चलते हैं? हमेशा देखते हैं? नहीं देखते? नहीं। आपकी माँ बहन किसी के साथ बाहर बात कर सकती है? कर सकती है, लेकिन वो गैर मुहर्रम, वो ना हो मुहर्रम बंदा हो। गैर मुहर्रम के साथ नहीं कर सकती, ना मुहर्रम के साथ नहीं कर सकती। आप लोग कर सकते हो ना, आप लोग की इजाजत है। मैंने सिंपल पूछा है, आपकी माँ बहन ना मुहर्रम के साथ बात कर सकती है? जरूरत के तहत कर सकती है, उसके साथ आप लोग की तरह। डिफाइन करें, हेलो, जरूरत को डिफाइन करें। जरूरत ये है ना कि मेरे घर पे कोई आ गया, मैं घर पे नहीं हूँ, उसने आवाज दी, बाहर दरवाजा बंद है, उसने आवाज दी है, मेरी बीवी एक मिनट ना, मेरी बीवी, ओ मेरे भाई सुन तो लो। एक जरूरत आ गई, और जरूरत बताएं। दूसरी है कि वो डॉक्टर के पास गई है, डॉक्टर ने उससे पूछा आपको क्या मसले, वो बता देगी कि मुझे ये मसले। एक मिनट सबर मैं फिक्स कर रहा हूँ, मजबूरी के तहत है, जरूरत नहीं है, मजबूरी के तहत कर सकती है, राइट? यार ये जरूरत ही है ना, आप बीमार है तो मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी समझो। अगर घर में जो आप समझते घर में कोई नहीं है, सुन ले, अगर घर में कोई नहीं है तो उसको जवाब देना है, ये मजबूरी है। अगर उसने डॉक्टर के पास जाना है और फीमेल डॉक्टर नहीं है, मेल डॉक्टर, ये मजबूरी है, ठीक है? मजबूरी के तहत कर सकती है, जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं हो सकती इस चीज की, जरूरत नहीं है। वो ना तो कोई आया बेल बजा के चला जाए, बजा के चला जाए, घर में बैठी रहे, ये जरूरत नहीं है, वो मर नहीं रही है इस चीज से, ये जरूरत नहीं होती, इसे मजबूरी कहते हैं। मजबूरी समझो, जो आप कहते हैं वही ठीक है, चलो परफेक्ट, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, अब आपने अपनी माँ बहन बेटी को कॉलेज भेजा? यार अभी मेरी बात सुनना, ये जो औरत बोल रही है ना, सर माँ बहन बेटी को कॉलेज भेजते हो? आप मेरे ऊपर जो है ना लागू ना करें ना, मैंने कहा माँ बहन बेटी को कॉलेज भेजते हो? मेरे क्यों नहीं सुनता है ये मेरे क्यों नहीं सुनता, मेरे क्यों नहीं सुनता? हाँ या ना में जवाब दे दो, सवाल है, आप मेरे जवाब नहीं दे रहे, मैं आपको क्यों दे दूं? भाई सुनो मेरी बात, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप अपनी बहन बेटी को कॉलेज पढ़ने भेजते हो या घर में बांध के रखते हो, इसका जवाब जी तो नहीं, ये नहीं भेजते होंगे, क्योंकि इनका स्टार्टिंग से ही इनका लैंग्वेज औरत के बारे में बड़ा ही गंदा निकल रहा है। स्टार्टिंग में ही तो बोले कि एक्स मुस्लिम तुम्हारी माँ बहन ऐसी होगी, गैर मोमिन ऐसी होगी, स्टार्टिंग से अब डायरेक्ट बोलते हैं कि मुंह काला करके आ जाओ, कहीं से भी आ जाती। ये क्या है इनका? ये तो अपनी घर पे पता नहीं क्या जुल्म ढाते होंगे औरतों पे, और काहे को कॉलेज भेजेंगे? क्योंकि इनको पता है कि वो भी जाएगी तो मुंह काला करके आएगी, ये डर से भेजते ही नहीं होंगे। सच्चा मुस्लिम साहब, आप ये बताइए, आप अपनी बहन बेटियों को कॉलेज पढ़ने भेजते हैं क्या नहीं भेजते हैं? मैं पहले इस औरत को जवाब न दे दूं? नहीं, जो बोल रही है इस सवाल का जवाब नहीं, इसको मैं पहले जवाब न दे दूं? पहले अपने सवाल का जवाब दे, फिर जो मर्जी करे।
क्यों आप क्यों जो है ना पहले वो इससे क्यों मुझे जवाब नहीं देने देते हो? क्योंकि क्यों आपने इसमें आप पहले लोग फंस बताना जाते है, हो? कॉलेज जी भेजते हो बेटी को, बहन को। भाई वो हमारा अपना मसला है, उससे आप लोग नहीं को गैर नहीं मुस्लिमों को मसला क्या है, अभी है? आपने साबित किया है कि मजबूरी के तहत ही औरत बात कर सकती है किसी और के साथ। मेरी बात तो कॉलेज सुनो ना। जाएगी, वहां पे टीचर्स भी हैं, वहां पे दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं, उसको रास्ते में हाँ शायद बस में भी जाना पड़े, रिक्शे में हाँ जाना पड़े, ऑटो में जाना हाँ पड़े, टैक्सी में जाना हाँ पड़े, इसमें से किसी चीज हाँ। में मजबूरी नहीं है। मुझे बताओ, भेजते हो कि नहीं भेजते हो? देखो मैं बेचता हूँ या नहीं बेचता हूँ मेरे भाई, एक्स नहीं, मुस्लिम मुझे का मुझे मसला ही जवाब नहीं चाहिए है। भाई। और हिपोक्रेट, ये एक्स मुस्लिम का मुनाफिक, मसला ही नहीं है। ये एक्स मुनाफिक, मुस्लिम कितना मुनाफिक नहीं, अबे भागना मुनाफिक, नहीं नहीं, है, ये आदमी नहीं बेचता भागना होगा। नहीं है, मैं भागना नहीं है। सुनो मुनाफिक। सुनो मेरी बात सुनो, नहीं ये नहीं बेचता एडम सीकर, ये इंसान जिसकी इतनी कट्टर सोच हो, ये इंसान नहीं बेचता होगा, इसलिए इस वजह से जवाब नहीं दे रहा है सच्चा मुस्लिम साहब, क्योंकि इनको पता है मैं जवाब दूंगा, अगर जो भी जवाब दूंगा यहाँ से भी फंसूंगा, अगर बोलूंगा नहीं बेचता हूं तो भी लोग इनके ऊपर लानत भेजेंगे। तो ये दोनों साइड से फंस चुके हैं बेचारे, इस वजह से जवाब नहीं देना चाह रहे। सच्चा मुस्लिम साहब जवाब देना चाहोगे? आप अपनी माँ बहन बेटियों को कॉलेज भेजते हो पढ़ने के लिए, क्या नहीं भेजते हो? अभी सुनोगे मेरी हाँ या बोलो। अपनी पहले हाँ या ना में सुनाओगे? जवाब, फिर आगे। नहीं, ये कौन सा तरीका है कि बस पहले तो मैंने पता आपके लगना ऊपर चाहिए लागू ना कर कि दिया? हमारे सवाल का नहीं, जवाब आए तो फिर 2 मिनट बोल लेना, उसके बाद कोई मसला नहीं है। मैं पहले हमारे इस सवाल का औरत को जवाब। जवाब दूंगा। ये जो लड़का नहीं, औरत पहले बोल रही है हमारी ना, बात का मैं जवाब, इसको फिर औरत जवाब का दूंगा। जवाब। तू औरत है को तुम क्या जवाब तेरे नहीं दे जवाब सकते। दे दूं? और तू औरत किस को तुम खेत जवाब की नहीं दे मूली सकते। है? तू है पढ़ क्या? गए। तू है यार क्या? पढ़ तू गए। मैं अरे तू जो है मैं बात क्या? करूं ना मैं कायल भाई इसको भी। हाँ, तू है क्या? वहां पे उस खेत की मूली में एक मिनट, एक मिनट। अल्लाह मियां के मोहम्मद ने बोला अच्छा था कि एडम, आदम सबका बाप है। उस खेत की मूली एडम में। एडम एक मिनट, एक जी मिनट, सर, एक मिनट एडम, जी एक सर, मिनट। ठीक है अभी सर। ये एक्चुअली फट गए हैं, फटने की कगार पे है, स्टार्ट हो गया इनका। इनको, मेरे को नहीं लगता है कि इनको हमें आगे मौका देना चाहिए, क्योंकि अब ये पूरे फट जाएंगे फिर खुद भी गाली सुनेंगे और जबरदस्ती का अपने रसूलुल्लाह की या अल्लाह की भी बेहुरमती गुस्ताखी करवाएंगे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि ये उस लेवल पे आपको लेके जाए और खुद भी जाए। मैं इनसे लास्ट बार पूछ रहा हूं एक बार कि भाई तमीज के दायरे में आप बात कर सकते हैं, हाँ बोलिए, वरना मैं दूसरे को मौका देता हूं। सच्चा मुस्लिम साहब। मैं तमीज के दायरे में करूंगा, लेकिन आप लोग करोगे तब। हम तमीज, हमने कहा आपको, आपकी बदतमीजी की हमने? हाँ बिल्कुल, अब बदतमीजी कर रहे हैं, अब क्या बदतमीजी कर बदतमीजी रहे की हैं। है? किस ये बात पे लेजा जो बदतमीजी आप हुई? लोग का लेजा है ना, ये किसी अच्छे लहजा? इंसान का लेजा नहीं है। हाँ, जो आप लोग अरे बातचीत कर रहे हैं, मुझे लगा था ये ये बोलेंगे कि आपने हमें, मुझे जो है इधर गाली दी उधर गाली दी, ये कह रहे कि लहजे में बदतमीजी है। हद हो गई मैंने आपको आपकी, ये कब तो गाली आप दी है? बहाना ढूंढ चल, रहे हो। तो आप बताओ। फीलिंग्स। ये गाना देख, सुना मैं? सच्चा मुस्लिम, ओ फीलिंग्स। सुनो ना जी, क्या एडम, बात है एक तेरी, मिनट, क्या बात है तेरी। एक मिनट, एक मिनट। सच्चा मुस्लिम साहब, मैं एक बार लास्ट बार पूछ रहा हूँ, क्या आप अच्छे तरीके से गुफ्तगू करना चाहते हैं, इल्मी गुफ्तगू? प्लीज एक बार रिप्लाई दे, वरना मैं दूसरे को मौका देता हूँ। मैं बिल्कुल करना चाहता हूं, लेकिन अगर आप ठीक है, करना अभी चाहते अभी तब हाँ ठीक है, ठीक है, हम करेंगे। एक मिनट रुकिए, अभी आपसे एक सवाल किया गया है कि क्या आप अपनी बहन बेटी को कॉलेज भेजते हैं या नहीं भेजते? ये सवाल बाद में किया गया। पहले वो औरत ने मेरे से एक सवाल किया था कि इसने मेरे ऊपर, हमारे ऊपर इल्जाम लगाए, नहीं, इसके इसमें मेरे सवाल जवाब पहले देना किया। पड़ेगा। एक मिनट, एक मिनट, एक पहले मिनट। एडम अभी ने देखो ना, आपसे, वही बात, प्लीज सच्चा एक मुस्लिम मिनट सुनो, साहब, एक मिनट सुनो, सच्चा प्लीज मुस्लिम साहब, प्लीज कह रहा हूँ, सच्चा प्लीज कह मुस्लिम रहा हूँ साहब, मैं। मैं नहीं, अभी आपने नहीं सुन। आपने इस बात का जवाब देना है कि क्या आप अपनी बहन बेटी को कॉलेज भेजते हो या नहीं देना भेजते है, हो? मैं जवाब दूंगा। पहले अभी उस अभी औरत को जवाब दूं, मैं पहले उस नहीं, औरत को पहले जवाब आपने दूंगा। ये सवाल का, क्यों, उसमें आपको मसला क्या है वो मुझे बता दो। मैं देखो मैं 5 बार गिनूंगा। मैं एक बार भी नहीं एक, गिनूंगा, मैं उस औरत को जवाब देना 2, चाहता हूं। उसमें आप फंस 3, रहे, उसमें 4, आप फंस रहे। क्यों नहीं? 5। आई एम रियली सॉरी।